This year, from 12th January 2013 to 12th January 2014, was the 150th birth centenary celebrations of Swami Vivekananda, and today we are in the last lap. We are in the last day of these celebrations. I know it was quite a satisfying year, and it was a year in which you all did lot of hard work to make lot of programs which were done here with lot of success. We started with Shobha Yatra on 12th January 2013, probably the best in Haryana and the largest in Haryana. So congratulations to you all. 18th February, Surya Namaskar was performed all over India. Lakhs and lakhs of students performing it at the same time. We were unlucky not to be able to perform it here in our campus because of the heavy rains a day ahead. But nevertheless, in Haryana, 27,000 students together at one time in Kurukshetra performed it, not to talk of other districts where also similar number of students, they collected together and performed Surya Namaskar. Then 11th of September, when Swami Vivekananda ji delivered his memorable lecture in Chicago, that was 11th September 1893, and last year, on 11th September, we organized Bharat Jago Dod, Run for the Nation. And again, Rohtak was probably the best in Haryana, although Faridabad also ranked almost equal. Faridabad, almost 12,000 students from various colleges, they participated. In Jaipur itself, almost 1,70,000 people. They ran together for the nation. Now last but not the least is tomorrow. That is floral tributes to Swami Vivekananda. Wherever you are, wherever you live, you all can put up a photograph of Swami Vivekananda and call your neighbors to give floral tributes to Swami Vivekananda. So that will finish the celebrations. But celebrations do not mean anything. They are a beginning. Swami Vivekananda, as he was relevant almost a century ago, continues to be relevant today. Why? Because he has taught us so many things with which we can change our lives. So many things they happen to you which probably are divine. So many things happened to me also in last year which were probably divine. And similar things can happen to you also if you truly follow anyone whom you believe. Because belief system is very important. Through my presentation, I am not trying to impress upon you that you follow Swami Vivekananda. You can follow any Nanda whom you like. But have faith in him, have belief in him, and things will start changing for you. A day before, when I was talking about motivation, my stress was on the belief system. The most important motivating factor in anyone's life is the belief system. If you have a strong belief system, you will be strongly motivated. So that is why one should read the spirituality, one should go through spirituality, one should follow spirituality, because it gives you a belief system, it gives you inner strength, because that inner strength is what is required to fight in this world. Otherwise, outwardly, so many people are strong, but it is the people with inward strength who matter. The example of Gandhiji, who was a frail man, a freak man, a man with very little resources, but changed the history of India. So, probably he was a man of strength, and when people asked him why he continues to devote so much time in prayers when country is burning. When the country was on fire,
he never left his prayers. He said, through these prayers only I am going to achieve everything, because the prayer gives me inner strength, and with that inner strength I am able to fight for the country. So if people like Gandhi can say that, we can also certainly follow what Gandhi ji has said, because he is father of the nation. Now the first slide is attitude. I have repeatedly talked to you about positive mental attitude, because attitude is one thing which can change our life. Everything is in our thought process. As is our thoughts, so are our actions, and so are our habits, and habits, they make our character, and character makes our destiny. So it is very important, friends, to have positive mental attitude. Today we are all into packaging system. We are all packages. Whenever we study, we look for packages. We do not look for life. हर कोई व्यक्ति अपने आप को पैकेज मानता है. नौकरी का भी पैकेज है, शादी का भी पैकेज है. लड़की ढूंढने लगते हैं, लड़का ढूंढने लगते हैं, तो कोई लड़के की क्वालिटीज नहीं आज देखने को तैयार. हर कोई ये देखता है कि लड़के का पैकेज कितना है, और अल्टीमेटली उसके रिजल्ट्स क्या है. दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, दे आर नॉट हिडन फ्रॉम यू. सो स्वामी विवेकानंद ऑलवेज स्ट्रेस्ड अपॉन positive mental attitude, and that positive mental attitude is there in lot many incidents of his life when he was into negativity, but his positive thought process brought him out. स्वामी विवेकानंद अकेले पहाड़ पर जाकर तपस्या करना चाहते थे, तो गुरु ने कहा कि तुम्हारा जीवन अकेले तपस्या करने के लिए नहीं बना. तुम तपस्या क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं. तो गुरु ने कहा कि यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में तुरंत अभी मोक्ष दिलवा सकता हूं, परंतु तुम्हारा जीवन केवल और केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं बना. तुम्हारा जीवन बना है हर एक देशवासी को मोक्ष दिलाने के लिए. और उन शब्दों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन को बदला, और एक संत से समाज सेवी बन गए स्वामी विवेकानंद. But he always kept positive mental attitude throughout his life, whether he was in India or outside India or into the far remote areas of the world. He always kept positive mental attitude. Boldness is very important. I have repeatedly said, बहुत से लोग अपने जीवन में बहुत बातें अनकही लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें साहस ही नहीं होता यहाँ पर आने का. और जो लोग साहस रखते हैं अपनी बात को कहने का, वो जीवन में सफल हो पाते हैं. जीवन में साहस का होना नितांत आवश्यक है, और स्वामी विवेकानंद कभी अपने जीवन में डरे नहीं. उन्होंने हमेशा कहा कि इस भारत को लोहे की मांसपेशियों और इस्पात के सनाइयों वाले लोग चाहिए, इस्पात के सनाइयों वाले युवा चाहिए. So he always believed in the strength, physical strength also, as he believed in the spiritual strength. So physical strength is equally important, so that you have a strong inner strength. And Swami Vivekananda always deliberated upon this aspect, because boldness in life is very important. Otherwise, if you think कि एक 28-29 साल का युवा जिसके पास कोई शिकागो का पता नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि कोई धर्म सम्मेलन, विश्व का धर्म सम्मेलन शिकागो शहर में हो रहा है, उसके लिए कोई परिचय पत्र नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, कोई टिकट नहीं है, and he certainly thinks and starts for that and goes there and becomes the best ever saint this world has ever produced. सो स्वामी विवेकानंद ने हमेशा निर्भीकता से, चाहे वो अपने शुरुआती जीवन में थे, बचपन में, चाहे वो कॉलेज में थे, चाहे वो संत बने रहे, उन्होंने कभी डर कर कोई काम नहीं किया. ऐसा कहते हैं कि महाराज अजीत सिंह, जो अलवर के महाराज थे, खेतड़ी के महाराज थे उस एरिया के, उन्होंने एक दिन स्वामी विवेकानंद को कहा कि स्वामी जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने विद्वान हैं, फिर भी जगह जगह भिक्षा क्यों मांगते फिरते हैं?
आपको तो अपने जीवन के लिए, रहने के लिए या जीवन गुजारने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए बहुत कुछ एक ही स्थान पर मिल जाएगा, फिर भी आप भिक्षा क्यों मांगते फिरते हैं? तो स्वामी विवेकानंद ने तपाक से अजीत सिंह से प्रश्न किया कि आप अंग्रेजों के जूते क्यों चाटते हैं? आप अपना समय अंग्रेजों के साथ शिकार में क्यों व्यतीत करते हैं या मनोरंजन करने में अंग्रेजों का क्यों व्यतीत करते हैं? लोगों ने सोचा कि राजा को ऐसा प्रश्न करके आज विवेकानंद ने अपनी मौत बुला ली। राजा ने कहा कि मुझे अच्छा लगता है इसलिए ऐसा करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा मुझे भी अच्छा लगता है इसलिए भिक्षा मांगता हूं। अन्यथा एक स्थान पर रहकर मैं भी बसर कर सकता हूं, एक स्थान पर रहकर मैं भी अच्छे से गुजारा कर सकता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि अपने देशवासियों के जीवन को देखूं, उस जीवन को देखकर मेरी सोच में कोई परिवर्तन आए तो मैं अपने देशवासियों का कुछ कर सकूं। ये था उनके निर्भीक होने का एक उदाहरण। अनेकों अनेक उदाहरण उनके जीवन में है। आई विल नॉट बी डेलिबरेटिंग अपॉन देम। तीसरी चीज जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद की संवेदना की। हम आज की हमारी युवा पीढ़ी संवेदनहीन है। ऐसा नहीं कि वो संवेदनहीन शुरू से है, हालात ने, वातावरण ने, माहौल ने उन्हें संवेदनहीन बनाया। इस संवेदनहीनता के चलते हम डॉक्टर भी बने, हम इंजीनियर भी बने, हम टीचर भी बने, हम वकील भी बने और जाने क्या क्या बने, परंतु हमने कहीं ना कहीं अपनी संवेदना को खोया। पैसा कमाने की संधि दौड़ ने हमारे अंदर की संवेदना को समाप्त किया, परंतु स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी उम्र अपनी संवेदनशीलता को दिखाया और इसी संवेदनशीलता के चलते लोगों ने उन्हें संत कहा। जीवन में संवेदनशीलता ही गुड और ग्रेट को डिफरेंशिएट करती है और स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनेकों अनेक उदाहरण जो मैंने आपको बहुत बार दिए, वह दर्शाते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितने संवेदनशील थे। उनके एक मित्र का निधन हुआ, फूट फूट कर रोए। लोगों ने कहा संत भी कभी रोया करते हैं। संत को तो हम ये मानते हैं कि दुख और सुख में एक सा होगा, परंतु स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संत को हाइपर इमोशनल होना चाहिए। संत को अपनी इंद्रियों के संवेदन को समाप्त नहीं करना चाहिए, परंतु उसको हाइपर सेंसिटिव होना चाहिए, हाइपर सेंसिटिव बनाना चाहिए। संत के अंदर एक आम व्यक्ति से ज्यादा संवेदनशीलता होनी चाहिए। इसलिए रोए, क्योंकि वो अपने दुख को छुपा नहीं पाए, अपनी संवेदना को छुपा नहीं पाए, अपने अंदर की वेदना को छुपा नहीं पाए। इसलिए स्वामी विवेकानंद संवेदनशील व्यक्ति थे। बाहर जाकर भी अच्छे बिस्तर मिलते थे, अच्छे बेड मिलते थे, पर उन पर कभी सोए नहीं, नीचे गद्दा बिछाकर सोते थे। सुबह लोग देखते थे कि उनका पिल्लो जो उनका सराहना है वो गीला पड़ा। लोग सुबह पूछते स्वामी जी रात को कुछ अशुभ हुआ क्या? तो स्वामी विवेकानंद कहते कि नींद नहीं आई, आंसू बहाता रहा। लोग पूछते किस लिए? तो कहते अपने देशवासियों के प्रति संवेदना के लिए, क्योंकि जब तक मेरे देश का एक भी कुत्ता भूखा है मैं जीवन में सो नहीं सकता, मेरे अश्रु रुक नहीं सकते। ये थे स्वामी विवेकानंद। और इसलिए मैंने बार बार आप लोगों से कहा, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर। कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कोई भी काम, हमारा चरित्र दर्शाता है। हमने कैरेक्टर को हमेशा गलत समझा, परंतु कैरेक्टर एक उससे भी बढ़कर चीज है जिसे हमने समझा। हर कार्य हमारा चरित्र दर्शाता है। समय पर आना भी हमारे चरित्र का एक हिस्सा है।
अपने काम पर रेगुलर आना भी हमारे चरित्र का एक हिस्सा है। अपने दिए काम को अपनी आत्मा से करना भी हमारे चरित्र का एक हिस्सा है। एक दूसरे की मदद करना भी हमारे चरित्र का हिस्सा है। इसलिए अनेकों अनेक कार्य, हमारा प्रत्येक कार्य हमारे चरित्र को बनाता है। इसलिए हमें हर कार्य में अपने चरित्र को दर्शाना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रत्येक कार्य में अपने चरित्र की महानता को दर्शाया। चाहे वो कोई छोटा काम था, चाहे कोई वो बड़ा काम था, स्वामी विवेकानंद ने प्रत्येक कार्य में अपने चरित्र को प्रदर्शित किया और उनके अंदर भारत का चरित्र झलक गया, क्योंकि वह ये मानते थे कि मेरे अंदर भारत ही घनीभूत हो गया। ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना कि एज इफ आई एम इंडिया, इफ आई मूव इंडिया मूव्स, इफ आई टॉक इंडिया टॉक्स। So that kind of feeling we all should have. And if we will have that kind of a feeling, we will certainly change the future of this country. Desire and determination are two very important things, believe me, in your life. We desire so many things, but we are not determined to have them. So many times we desire so many things, but ultimately we are unable to achieve. Why so? Because we have only desired and we have not put in a determined, a dedicated and disciplined effort. If we'll put in a determined, disciplined and dedicated effort, believe me, all our desires will become realities. So that is the difference. और स्वामी विवेकानंद ने, इसीलिए हम 25 दिसंबर को संकल्प दिवस मनाते हैं। 25, 26, 27 दिसंबर 1892 कन्याकुमारी, जहां पर तीनों समुद्र आकर मिलते हैं, उस स्थान पर खड़े होकर उस शिला को निहारा जहां पर मां पार्वती ने बैठकर तपस्या की थी। एक पांव पर खड़े रहकर सालों साल, बरसों बरस तपस्या की भोले शंकर को पाने के लिए। और यदि आप लोगों में से कुछ लोग विवेकानंद स्मारक गए हैं, मुझे जाने का सौभाग्य मिला पिछले वर्ष, उस पत्थर पर यदि आप देखेंगे तो एक पांव का उभार है, क्योंकि एक पांव पर तपस्या करते करते उस पत्थर पर खड़े रहकर उस पत्थर में भी उभार आ गया। डिप्रेशन नहीं है, यू सी, अदरवाइज वेट से डिप्रेशन आना चाहिए, इसमें उभार आया पांव। और उस उभार, उस शिला के दर्शन करने के लिए, उस मां के पांव के दर्शन करने के लिए विवेकानंद ने उफान से भरे समुद्र में छलांग लगाई। ना मछलियों का भय सताया, बोल्डनेस जिसकी मैंने बात, जेब में पैसे नहीं थे नारी को देने, और ना कोई साथ में रोटी ले जाने का डर सताया। 3 दिन भूखे प्यासे बैठकर इस व्यक्ति ने भारत के भविष्य की चिंता और चिंतन किया। उन 3 दिनों में उन्हें एक अंतर्दृष्टि मिली, अपने गुरुदेव का दर्शन हुआ और उन्हें एक नई दिशा मिली कि मैं विदेशों में जाकर लोगों को भारत के वेदांत के बारे में बताऊं। और तब वो इस धर्म सभा में गए। और लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये धर्म सभा बनी ही स्वामी विवेकानंद के लिए थी। और स्वामी विवेकानंद ने तो बार बार ये कहा अपने मित्रों से, अपने सहचरों से कि ये धर्म सम्मेलन तुम देखना कि जब मैं इस धर्म सम्मेलन से आऊंगा वापस, तो निश्चित रूप से मैं भी बदला मिलूंगा और भारत भी बदला मिलेगा। और स्वामी विवेकानंद ने अपने प्रयासों से, अपने संकल्प से निश्चित रूप से इस देश को एक नई दिशा दी। हमारे स्वाधीनता संग्राम, जिसकी लो ठंडी पड़ चुकी थी, उसको तेज करने में स्वामी विवेकानंद ने काम किया। स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर अरबिंदो जैसे लोग, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, लोकमान्य तिलक जैसे लोग, और गांधी जी ने भी लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा कि यदि हमारा देश स्वामी विवेकानंद के बताए कदमों पर चलेगा तो निश्चित रूप से भारत का भाग्य उज्जवल होगा। इसलिए ये नहीं कि स्वामी विवेकानंद अकेले, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया। और यही स्वामी जी का संकल्प था कि भारत की दिशा बदले, भारत के गरीब की दशा बदले।
और उसके लिए उन्होंने सारा जीवन काम किया। और इसी संकल्प के चलते स्वामी जी ने अनेकों अनेक कार्य कर दिखाए जो लोग समझते थे कि ये कार्य ना होने वाले हैं, ये कार्य असंभव है, उन कार्य को संभव कर दिखाया स्वामी विवेकानंद ने केवल और केवल संकल्प की शक्ति से। स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग कहते हैं कि उनमें एक अद्भुत वाक शक्ति थी। जब वो बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लोग यहां तक कहते हैं कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते थे। कई लोगों ने तो यहां तक कहा कि विवेकानंद हिप्नोटिज्म की कला जानते हैं, पर ऐसा नहीं था। कम्युनिकेशन में बिलीव मी ओनली 20 to 30% आर दी वर्ड्स, शब्दों में, बाकी 70% नॉन वर्बल यानी कि निशब्द। नॉन वर्बल इंक्लूड्स आर बॉडी लैंग्वेज, आर फेशियल एक्सप्रेशंस, आर हैंड एक्सप्रेशंस। ना ये जो 70% है, इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद के बारे में यदि मैं चिंतन करूं तो मैं ये कहूंगा कि उस 70% में उनका तप झलकता था, उनका जप झलकता था, उनके पूरे जीवन का दर्शन झलकता था। इसलिए न केवल लोग उनके शब्दों से प्रेरित होते थे बल्कि उनके निशब्द से प्रेरित होते थे। वरना सारी दुनिया में कहने वाले लोग थे, उनसे पहले भी बहुत लोग बोले थे जिन्होंने कहा होगा माय डियर कंट्री फेलोज, माय डियर अमेरिकन्स, पर जब विवेकानंद ने कहा माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओनली दीज 4 वर्ड्स, इन 4 शब्दों ने उस 7000 लोगों से भरे हॉल को खड़ा कर दिया स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने के लिए। तो केवल 4 शब्द नहीं थे, उन शब्दों में जो निशब्द था, जो उनकी तपस्या थी, उस तपस्या ने उन लोगों को मजबूर किया कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद का स्वागत किया। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद धर्म सभा में एक दिन नहीं बोले, बार बार बोले, प्रतिदिन बोले। और स्वामी विवेकानंद के लेक्चर को वो सबसे आखिरी लेक्चर रखने लगे, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए लोग बैठे रहेंगे। टू कैप्चर द ऑडियंस दे केप्ट हिज लेक्चर एज द लास्ट वर्ड। इसीलिए मैंने लिखा, अल्फाजों में भी जान होती है, इन्हीं से दुआ, इन्हीं से अजान होती है, ये दिल की गहराई के वो मोती हैं जिनसे व्यक्ति की पहचान होती है। And believe me, this morning session is a wonderful stage for all of you to come forward and improve your eloquence or your communication, because it is very important to be a good communicator. You can become a good teacher only if you are a good communicator. Egoless, probably very difficult to attain, but is very important. There has to be some amount of ego in the individual to carry forward in life. थोड़ी सी ईगो, बट वो क्रिएटिव ईगो का होना जरूरी है। ईगो भी 2 तरह की होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। डिपेंड करता है कि हम कौन सी ईगो को बढ़ाना चाहते हैं। नेगेटिव ईगो को हमें खत्म करना चाहिए। ज्यादातर लोग ये काम मेरे लिए नहीं है, ये काम मैं नहीं कर सकता, यानी इस ईगो में अपने जीवन को निकाल देते हैं। कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, छोटी या बड़ी होती है तो केवल और केवल हमारी ईगो। और जो व्यक्ति जितना बड़ा हो उतना छोटा कार्य करे तो वही महान कहलाता है। इसीलिए कहा, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं, फल वाले पेड़ हमेशा झुकते हैं, गुणी व्यक्ति हमेशा झुकते हैं। इसलिए अपनी ईगो को समाप्त करके, अहंकार को समाप्त करके, हमें छोटे से छोटे कार्य को करने में भी कोई अपना अपमान नहीं समझना चाहिए कि मैं तो पीएचडी हूं तो इसलिए मैं ये नहीं कर सकता। नो वर्क इज बिग, नो वर्क इज स्मॉल। So kindly, whenever you are assigned any duty, take it as your duty. Do not take it as a small work or a large work or the work not worth you. Everything is worth us. So let us shun our ego, throw away our ego and start working together and with all the sincerity. Focus. As I have repeatedly said,
मन की एकाग्रता। स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले, आप सुनो देखो कितनी बड़ी बात है, यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं केवल और केवल मन की एकाग्रता की शिक्षा लूं। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा पद्धति केवल और केवल तथ्यों का संकलन सिखाती है हमें। इट इज ओनली ए टेस्ट ऑफ मेमोरी, इट इज नॉट ए टेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, इट इज नॉट ए होलिस्टिक अप्रोच इन आवर एजुकेशन। हमारी एजुकेशन में समग्रता नहीं है, पूर्णता नहीं है। हम केवल और केवल एक स्मृति को बढ़ाने का काम करते हैं, और हम जो पेपर एग्जामिनेशन सिस्टम है वो भी केवल और केवल मेमोरी टेस्ट का है। Memory is a small part of IQ. We have not developed upon EQ and SQ in our education system. And the older education system which we had, गुरु शिष्य परंपरा, उनमें इन सब चीजों का समावेश था। लोग गुरु के साथ रहते थे, गुरु क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, everything they used to learn. Not only के जो इतिहास में लिखा है, जो गणित में लिखा है, जो भौतिकी में लिखा है, रसायन में लिखा है, परंतु गुरु की प्रत्येक और प्रत्येक आचरण को भी बच्चे साथ साथ फॉलो करते थे। और इसलिए गुरु शिष्य परंपरा शायद ज्यादा सफलता पूर्ण शिष्य पैदा करती थी। आज की शिष्य पद्धति ने कोई कृष्ण कोई युधिष्ठिर पैदा नहीं किया। आज की शिक्षा पद्धति ने केवल और केवल मानव का विकास तो किया, परंतु साथ साथ विनाश के तरीके भी सिखाए। ज्यादातर युवा विनाश की ओर अग्रसर है। सफल कितने लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर, आप तो यू आर लकी पीपल, यू नो। हमें अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्हें हमें पढ़ाया, हमें अच्छी शिक्षा दिलाई, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, बट थिंक अबाउट अदर इंडिविजुअल्स। सो मन की एकाग्रता सबसे आवश्यक है। जब भी हम कोई भी कार्य करें अपनी पूर्ण एकाग्रता से करें, अन्यथा हॉल में तो बहुत लोग बैठे हैं, कितने एकाग्र होकर सुनते हैं और कितने एकाग्रता से उन कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, ये जीवन में बहुत आवश्यक है। अपने मन को एकाग्र करना, और स्वामी जी ने कहा कि यदि हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं तो जो कार्य हमने जीवन में नहीं भी किए उनको भी हम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को यू विल बी सरप्राइज्ड, एक बार पढ़ने से पूरे का पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका कंठस्थ था। हमारे वेद पुराण उपनिषदों की तो बातें छोड़ो जो कंठस्थ थी, परंतु ब्रिटेन का एनसाइक्लोपीडिया भी स्वामी विवेकानंद को कंठस्थ था, और केवल एक ही बार पढ़ने से। कहते हैं कील गए जर्मनी में, पॉल डायसन से मिले, हु वाज ए जर्मन पोएट। उसने अपना एक काव्य संग्रह लिखा था जो 1100 पेज का था। स्वामी विवेकानंद को दिया पढ़ने के लिए, स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा, और जब तक डायसन कॉफी बनाकर लाए तब तक पढ़ चुके थे, रख चुके थे। डायसन को लगा कि ये तो विवेकानंद ने तेरा अपमान किया, तूने इतनी मेहनत से लिखा और 3 ही मिनट में इस व्यक्ति ने पुस्तक को साइड पर रख दिया। उसने कहा स्वामी जी आपको मेरा काव्य संग्रह अच्छा नहीं लगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा मैंने तो पढ़ लिया, बहुत अच्छा है। उसने कहा क्यों स्वामी जी मजाक करते हो? तो डायसन ने स्वामी जी से प्रश्न किए, कुछ लाइनें पूछी अपनी कविताओं की। स्वामी विवेकानंद डॉट, पेज नंबर और लाइन उसको बता पाए। स्वामी विवेकानंद ने मन की एकाग्रता से अपनी फोटोजेनिक मेमोरी डेवलप की कि एक बार एक चीज को देखा तो वो चीज पिक्चर यहाँ हो, फिर उस पिक्चर की स्लाइड कभी देखते रहो, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसा था उनका फोकस। और तरह तरह के उदाहरण, जैसे गोली कभी नहीं चलाई थी, गोली चलाने का उदाहरण। फिर बच्चे जब नहीं माने तो उनको ड्रम पर खड़ा कर दिया, बच्चे गोलियां चलाते रहे। जैसे ये टेलीफोन की घंटी बजती रही, ऐसे बच्चे गोलियां चलाते रहे, और स्वामी विवेकानंद खड़े अपना पूरा भाषण देते रहे, और अपना भाषण उन्होंने पूर्ण किया गोलियों के चलते। ये था स्वामी विवेकानंद का फोकस। भटको ना अपने पथ से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। व्यक्ति को अपना गोल, अपना मिशन कब मिले, कहां मिले, कुछ नहीं मालूम, परंतु हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में
थोड़ा सा कुछ घटित हुआ और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला। स्वामी विवेकानंद जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसमें थे प्रोफेसर हेस्टी। एक दिन वर्ड्सवर्थ को पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने कहा कि वर्ड्सवर्थ कविताएं लिखते हुए ट्रांस में चले जाते थे। हमारे यहां रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहते हैं कि जब कविता लिखते थे तो रविंद्रनाथ ने हमेशा कहा कि मैंने कभी कविता लिखी नहीं, कविता हमेशा उतरी है। जो उतरी मैंने तो केवल उसे कलमबद्ध किया। ऐसे ही वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं कि कविता उतरती थी, ही यूज्ड टू गो इन अ स्टेट ऑफ ट्रांस, और यानी समाधि लगती थी लिखते लिखते। तो स्वामी विवेकानंद ने जब प्रोफेसर हेस्टी से सुना कि वर्ड्सवर्थ को ट्रांस लगता था, और हेस्टी ने उदाहरण दिया कि ऐसा ही कुछ दक्षिणेश्वर में काली मां के मंदिर में जो पुजारी या रामकृष्ण परमहंस उसको भी लगता। यदि देखना चाहते हो तो जाकर देखो। बस एक शब्द उस ट्रांस ने स्वामी विवेकानंद को परमहंस की तरफ पुकार दिया, और उसके चलते उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिला कि जीवन क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, हमारे जीवन का मूल क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए परमहंस की तरफ चल पड़े। हमारे भी जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य आवश्यक होना चाहिए, पर उन उद्देश्यों में एक उद्देश्य जो परसों वीके आहूजा साहब ने कहा था, नो योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, और उद्देश्य हमारे हो सकते हैं, अच्छा मकान बनाना, अच्छी कार बनाना, बट लॉन्ग टर्म गोल एक ही है, एंड दैट इज नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना। और विवेकानंद को अपने आप को जानने का उद्देश्य केवल और केवल एक मात्र शब्द ट्रांस से मिला, जिसे प्रोफेसर हेस्टी ने यूज किया। और इसके अलावा जेनरस होना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ऑनेस्ट होना, जिंदगी में ऑनेस्टी पेस एंड ऑनेस्टी लास्ट। और हमारे तो देश का जय घोष है सत्यमेव जयते। इसलिए हम सबको सच्चाई के रास्ते से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। मां ने कहा कि सत्य के लिए सब कुछ त्याग देना, और इन्हीं शब्दों को विवेकानंद आजीवन निभाते रहे कि सत्य के लिए कितनी भी बड़ी मुसीबतें आई, स्वामी जी ने सत्य को नहीं छोड़ा। और हम सबको भी सत्य को निभाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, किसी डर से झूठ बोलना नहीं चाहिए। जो बात सच हो उसको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर ताप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। ह्यूमैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ईगोलेस में भी विनम्रता का प्रयोग किया, ह्यूमैलिटी भी विनम्र होना है। और स्वामी विवेकानंद कितने हम्बल थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके एक दोस्त थे मोतीराम, उन्होंने ग्रेट इंडिया सर्कस, अभी कुछ लोगों ने धूम 3 देखी होगी तो उसमें भी थी एक, तो मोती ने ग्रेट इंडिया सर्कस बनाई और वो मालिक बना उसका, तो लोग मोती सर कहने लगे उसे। जब विवेकानंद लाहौर गए और वहां पर मोती से मिले, दोनों आपस में मिले, तो मोती ने कहा कि तुम्हें पूरा देश पूछता है, अब मैं तुम्हें नरेंद्र कहूं या स्वामी जी महाराज, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं तेरा नरेंद्र और तू मेरा मोती। ऐसी विनम्रता स्वामी विवेकानंद के अंदर थी, और दुनिया ने उन्हें कुछ भी कहा, चाहे संतों का संत कहा, चाहे महाराज कहा, चाहे कुछ भी कहा, स्वामी विवेकानंद इन शब्दों से अपने जीवन को कभी विचलित नहीं किया, हमेशा विनम्र बने रहे, और उसी विनम्रता में उन्हें सब कुछ पाया। पहल करने वाले लोग ही अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। जो पहल करता है, जिसने पहल की, उसी को लोगों ने याद किया। वॉशिंग पाउडर कितने ही आ जाएं जो निरमा ने अपनी जगह बनाई, नूडल्स कितने ही आ जाएं जो मैगी ने अपनी जगह बनाई, तो जो इनिशिएटिव लेने वाले लोग हैं उन्हीं को याद किया जाता है। और इनिशिएटिव स्वामी विवेकानंद ने अनेकों अपने जीवन में लिए, और उन इनिशिएटिव्स में थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द वेस्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रामकृष्ण मठ,
वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे कुछ कार्य किए, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिटेशन टू गेम्स, सो मेनी थिंग्स इन विच स्वामी विवेकानंद हैड टेकन इनिशिएटिव्स। एंड इसलिए नई चीज सीखने की जिसने आशा छोड़ दी वह बूढ़ा है। उम्र से कोई बूढ़ा हो जैसा, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं है। और आप तो जवान से जवान है, हमारे से भी जवान है। All those people, 3 cheers for them. They in this age group are also working hard for this. Nationalistic होना, अपने अंदर राष्ट्रवाद को अपनाना, अपने अंदर राष्ट्रीयता को रखना, कंट्री फर्स्ट शुड बी आवर मोटो। और जब कंट्री फर्स्ट हमारा मोटो होगा तो हम कभी उस पर थूकेंगे नहीं, कभी कागज नहीं फेंकेंगे, कभी उसका अपमान नहीं करेंगे। हमने मां कहा, सभी किसी देश ने मां नहीं कहा अपने देश के लिए, किसी लोगों ने नहीं कहा, परंतु भारत में हमने मातृभूमि कहा। यदि ये हमारी मां है, जिस मां के ऊपर करोड़ों लोग कुर्बान हुए इस मां को आजाद कराने के लिए, और यदि हम उस राष्ट्रीयता को छोड़ देंगे तो शायद हमारा देश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने अंदर राष्ट्रवाद को रखना, और स्वामी जी एक संत होने के नाते भी राष्ट्रीयता से कूट कर भरे थे। राष्ट्रीयता उनके अंदर बसती थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने तो यहां तक कहा कि यदि तुमने भारत को जानना है, रोमा रोला से कहा जिसने उनकी जीवनी लिखी, कि यदि तुमने भारत को जानना है तो केवल और केवल विवेकानंद को जानना। इतनी राष्ट्रीयता। और बाकी उदाहरण मैंने तुम्हें दुनिया पता नहीं अनेकों अनेक बार इस दौरान इस साल में दिए। और भगत सिंह के शब्दों में, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। ये भगत सिंह, ये विवेकानंद, यानी मरने के बाद भी हमारी मिट्टी से वतन की खुशबू आए। करोड़ों लोग कुर्बान हुए इस देश के लिए, और उस देश का यदि हम अपमान करें तो हमारे लिए अच्छा नहीं। यदि हमें इस देश में कुछ ही चीजों का परिवर्तन करना, थोड़ी सी सोच का एक अपने बटन को रीसेट करना, कि यदि हम अपने से पहले देश को रखेंगे तो निश्चित रूप से ये देश तरक्की करेगा। मैं चाइना में गया तो जो हमारा गाइड था बड़ी तेजी से भागता था, तेज चलता था। हालांकि मैं भी तेज चलता हूं, पर वो इतना तेज चलता, मैं उसे कहता रुक 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 यार, तू इतनी तेज से क्यों भाग रहा है? तो ही हैड ओनली वन वर्ड टू से, कि साहब अमेरिका को पीछे छोड़ दे। यू सी, ए गाइड इन ए कंट्री हैड सच ए विजन, कि एक ही भाव उन सब के अंदर। जापान में पूछो, बुद्ध को पूजते हैं। उन्होंने कहा कि यदि बुद्ध सेनापति बन के आ जाए और तुम्हारे देश पर आक्रमण करे तो तू क्या करेगा? कहता सबसे पहले बुद्ध को मारूंगा। यह उनकी राष्ट्रीयता है। और इसीलिए बिल्कुल तहस नहस होने के बाद 1942 में हिरोशिमा और नागासाकी बम ब्लास्ट के बाद फिर अब जापान खड़ा हो गया। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे। व्हाई? बिकॉज पीपल आर ओवरली नेशनलिस्टिक। और हमने केवल और केवल राष्ट्रीयता को छोड़ दिया, बाकी सब कुछ अपना लिया। भारतीय कहने में शर्म आती है। लोग पाकिस्तान के, लंका के, बांग्लादेश के जब बाहर जाते हैं, एंड इफ यू मीट देम एंड यू आस्क देम, आई वाज इन स्विट्जरलैंड और मेरे वहां पे जो शेफ था, मैंने उससे पूछा भी विच कंट्री यू आर, कहता जी इंडियन है। मैंने कहा इंडिया में कहां से? कहता जी अपन लाहौरी हैं। मतलब वो लाहौर को भी इंडिया में, क्योंकि उन लोगों को इंडिया से रिकॉग्निशन मिलती है, वो लोग इंडिया कहने में दे फील प्राउड। श्रीलंकन्स को पूछो, बांग्लादेशीज को पूछो, दे फील प्राउड इन सेइंग आउटसाइड दैट दे आर इंडियंस बिकॉज दे गेट रिकॉग्निशन। और इंडियन से यदि आप बाहर पूछोगे तो वो इंडियन ही नहीं बताएगा, बाकी सब कुछ बता देगा। वी शुड से इट विद प्राइड दैट वी आर यस। जोवियल, अच्छी बात है। नॉलेज, मैंने बार बार कहा, सुपरफिशियल नहीं होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए। लॉयल्टी हमारी बनी रहनी चाहिए।
with our parents, with our friends, with our organization. It is very important, and we must do something novel. We must do something different. We must do something innovative. People who do something innovative are the people who are remembered. We must not waste upon the opportunities and the potential all of us have. You see, स्वामी विवेकानंद said कि हम सब के अंदर मानव से महामानव बनने की क्षमता है. हम सब के अंदर सोई शक्तियां हैं. आवश्यकता है केवल उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने की, और वो सुप्त शक्तियों को जागृत करने का एक ही माध्यम मन की एकाग्रता. ये जितनी चीजें मैंने आपके साथ गिनवाई, ये सब हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करने के माध्यम है. चाहे वो हमारी सोच हो, चाहे वो हमारा साहस हो, चाहे वो हमारी राष्ट्रीयता हो, चाहे हमारी संवेदना हो, ये हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है. और जो व्यक्ति अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं वही महान कहलाते हैं. हम सब के अंदर मानव से महामानव बनने की क्षमता है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा. और आप सब लोग भी, स्वामी विवेकानंद ने कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम गंदगी से बने. सब लोग कहते हैं कि आदमी मांस मज्जा से, सब गंदी चीजों से बने, मल मूत्र से बने व्यक्ति. पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम अमृत के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म अमृत से हुआ है. यह स्वामी विवेकानंद ने कहा. और उन अमृत के पुत्रों की आज ऐसी दशा हो, वो अच्छी नहीं. इसलिए हमारे देशवासी जो बाकी भी अमृत के पुत्र हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. क्वालिटी रिलेशनशिप्स बिल्डर स्वामी विवेकानंद ने हमेशा से, चाहे जात पात पर सबसे पहले प्रहार स्वामी विवेकानंद ने किया, उस समय में किया जब शूद्रों को कानों में घंटी बांधकर चलना पड़ता था कि कहीं कोई छू ना ले. गली मोहल्लों में बंगाल में सबसे ज्यादा थी. जब चलते थे लोग शूद्र, तो उनको घंटी बांध कर चलना पड़ता था, लोगों को सचेत कर दो कि भाई साइड पे हो जाओ. उस समय में चर्मकार के घर का पानी पिया, मोची के घर में रोटी खाई. ये स्वामी विवेकानंद ने किया. लोगों ने कहा कि तुम संत खत्म हो जाओगे. स्वामी विवेकानंद ने कहा इससे मुझे कोई अभिप्राय नहीं. मानव मानव है, इंसान इंसान है. और इस देश में सबसे पहले यदि किसी ने दरिद्र नारायण शब्द का, दरिद्र को नारायण कहा, तो वो स्वामी विवेकानंद ने कहा. चोर को भी कहा चोर रूपी ईश्वर, पापी को भी कहा पापी रूपी ईश्वर, दुष्ट रूपी ईश्वर. यानी प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ईश्वर को देखा. ये स्वामी विवेकानंद. क्विक विटेड होना भी एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है. और स्वामी विवेकानंद, लोग जैसे बाबू, तो किसी ने कह दिया बबून. बबून मतलब लंगूर टाइप, वैरायटी ऑफ. तो मतलब स्वामी विवेकानंद को जैसे ही किसी ने कहा कि बाबू और बबून में कोई फर्क नहीं है, तो वो जो कहने वाला था वो स्कॉटिश था. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि स्कॉट और शॉर्ट में भी कोई फर्क नहीं है. शॉर्ट होता है जो नशे में धुत हो, तो स्कॉटिश था. तो स्वामी विवेकानंद ने कहा देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन स्कॉट एंड शॉर्ट. इट इज ओनली अ डिफरेंस ऑफ सी एज इज द डिफरेंस बिटवीन बाबू एंड बाबू. एन इज द ओनली डिफरेंस. We must be responsible for all our deeds and we must have self-esteem. स्वाभिमान होना हमारे अंदर अत्यंत आवश्यक है. और टाइम हो गया. I think I must finish. Self restraint is very important. जीवन में हमें बहुत सी चीजें आकर्षित करती हैं और उनसे अपने आप को रोकना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है. कुछ चीजों से रोकना, कुछ चीजों के लिए संवेदनशील होना. और स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया, परंतु मुझे लगा कि मैं तब तक स्वामी नहीं बना जब तक मैंने एक गायिका के ये शब्द नहीं सुने. स्वामी विवेकानंद को अजीत सिंह ने अपने पुत्र के जन्म पर, जन्म दिवस के आयोजन में बुलाया. और स्वामी विवेकानंद को जब पता लगा कि कोई गायिका गाने वाली है, तो उठकर अपने कमरे में चले गए. गायिका को भी बुरा लगा कि स्वामी विवेकानंद जैसा व्यक्ति तेरा गाना ना सुने. और जब उसने गाना शुरू किया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बदिर धरो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, कंचन दो. यानी उस दिन स्वामी विवेकानंद नीचे उतर कर आए, उस गायिका को शाबाशी दी और उस दिन लिखा कि आज
मुझे पता लगा कि तेरा ब्रह्मचर्य इतना सस्ता नहीं है, कि एक गायिका के गायन से यदि तेरा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट होता हो तो ऐसे ब्रह्मचर्य की मुझे आवश्यकता नहीं। तब स्वामी विवेकानंद ने लिखा कि मेरे अंदर उस दिन समदर्शिता, जो मैंने कहा कि चोर रूपी ईश्वर, पापी रूपी ईश्वर, ये सब चीजें हर व्यक्ति के अंदर, मैंने उस परमात्मा के दर्शन किए। उस दिन से स्वामी विवेकानंद की दृष्टि बदली, समदर्शिता का भाव जगा। इसी समदर्शिता को हम बनाए रखें, अपने अंदर सभी से प्रेम करते रहें, सभी को जगाते रहें, सभी में राष्ट्रीयता पैदा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एंड दिस वाज द 150th लेक्चर ऑन स्वामी विवेकानंद।